Greetings. On behalf of Friday Waters, an initiative of the W4W Foundation, a think tank built as Citizens Collective, we welcome you to today's session. Friday Waters is a continuation of the signature series Wednesdays for Water. The activities initiated in the Friday Waters include Water Talkies, which is today, Water Reading Club, Water Thesis Club, and Water Arts. Each of these sessions take place once a month. The idea is to bring water knowledge available in various alternate forms at one place to highlight the challenges related to water and increase the outreach in the water networks as well as society at large. The Friday Water sessions are designed to be fun-filled and yet fruitful to learn about the water matters in a different way. Keep following us at www.w4w.in for regular updates. As I mentioned, the focus of Friday Water session is on bringing the artists, directors, filmmakers, and other film crews who have done or are doing films, music, documentaries, any artwork on water matters to the session in order to discuss with them the making of their artwork and the issues around the subject covered. My name is Mansi Bal Bhargav, and I am joined by Anuja Bali of ITI School Foundation, Pune, as the discussant for today's session of Water Talkies. So over to you, Anuja, and I look forward to learning from both of you. Thank you. Thank you, Mansi. Welcome to today's session of Water Talkies. The film Pani Re Pani that we are going to feature today is, we have Sadiq Sheikh, and the film talks about the politics of water, misappropriation of funds that are allocated specifically for water. Villagers are drinking water that is muddy brown in color from the river, but the funds are not there for cleaning the water. So we are joined today by Sadiq Sheikh. Welcome, Sadiq. And आपके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सब लोगों को कि सादिक पुणे के पास में रहते हैं. He grew up in Maharashtra in a middle class family in a rural area. And he had a very simple lifestyle. He didn't finish his graduation, but since childhood, he was very interested in drama and used to write and perform as an actor. He used to gather his friends and, all the things and perform dramas for people. And later on, he joined a private company to earn his living. So every day when he went for morning walks near the river, he would stop for a while and see how the river was constantly getting polluted. And that is where he got the idea and theme and inspiration for writing a short story about this. And along with a few friends who were professional artists and villagers, this film Pani Re Pani was made. As a private company employee, whenever he gets an opportunity, he acts in television serials and movies. And even after so many years, he claims to be in a continuous struggle to live by his passion for making films. We wish him all the best and invite him to share his journey of Pani Re Pani. So welcome Sadiq. आपकी फिल्म हमने देखी, वो बहुत ही ज़्यादा impactful है, disturbing है. So आप बताइए आपके फिल्म के बारे में कुछ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले फिल्म का एक ओपनिंग सीन दिखाऊं जिसको देख के सबको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है. आप बताएं कैसे हम शुरू करें. जी, जैसे आप सही समझे. तो मैं आपको सबसे पहले एक ओपनिंग शॉट दिखाती हूँ जिसको देखकर सब लोग का दिल दहल जाएगा कि पानी की क्या कंडीशन है आज, which is a reality. We're not hearing the sound, Anuja. Yeah, it's just background music. Okay. Okay, so
एज यू ऑल सॉ, वो मराठी में बोल रहे थे पुलिस वाले कि क्या पुलिस वाले जब आए तो वो दोनों आदमी जो उसके दोस्त हैं वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ होगा, और दूसरा दोस्त कहता है मुझे नहीं पता। सादिक, अब आप बताइए क्या हुआ था, और आपको सबसे ज्यादा पता है इसके बारे में। जी जी। वो जो मेन लीड जो है अन्ना, तो उनकी डेथ हो गई है नदी में। वो मतलब फ्लोट हो रहे, तो उनके सब गांव वाले और उसके फ्रेंड बिन सब वहां पे आए हुए हैं, पुलिस भी आ रहे हैं। और वो पूछते, पुलिस उनको पूछते कि क्या हुआ होगा, वो आपस में बात कर रहे क्या हुआ होगा। तो वो बोलते कि नहीं कुछ पता नहीं कैसे उनकी डेथ हो गई। और उतने में फिर पुलिस इंक्वायरी का वो सीन आ गया है। आप बताइए कि इस फिल्म के बारे में आपने कैसे सोचा, और ये सब रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रभावित है क्या? जी जी जी। तो वैसे तो है, फैक्ट है थोड़ा कि रियलिटी जो चल रहा है जो अभी दुनिया में, वही आप बताने की कोशिश की है मैंने। एक्चुअली जब भी मैं बचपन से नदी पर तैरने के, स्विमिंग के लिए जाता था, तो देखता था कि इतनी गंदगी नदी में तैर कर आती थी। मतलब बहुत डिस्टर्ब होता था मैं कि लोग आकर वो नदी में विसर्जित करते थे, सब कचरा वगैरह डालते थे। तो वो मतलब गलत हो रहा था मुझे, कहीं ना कहीं तो वो फील हो रहा था कि दिस इज नॉट राइट गोइंग ऑन। तब से मतलब वो दिमाग में था कि अब एक दिन कुछ ना कुछ तो अपने को इसके ऊपर कुछ करना है, एज अ ड्रामा या शॉर्ट फिल्म या कुछ ना कुछ। तो मैंने एक मूवी भी लिखी है इस पर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन मूवी, मराठी मूवी ओके। औचित। हाँ, उसके बाद फिर मैं जब इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कुछ फाइनेंसर मिल जाए, कोई नहीं क्या प्रोड्यूसर वगैरह मिल जाए, तो इन बिटवीन शॉर्ट फिल्म का एक आइडिया आ गया, एक फ्रेंड ने दे दिया कि ऐसा ऐसा है। तब फिर मैंने सोचा कि चलो शॉर्ट फिल्म सही है, ये थोड़ा बहुत अपना आइडिया जो है वो थोड़ा एक्सपोज हो जाएगा। तो इस वजह से वो फिल्म का जन्म हो गया, पानी रे पानी। और वो आइडिया तो पहले से था दिमाग में कि ऐसा ऐसा करना है, स्टोरी जो रियल लाइफ जो हो रहा है दुनिया में, तो वही अपने को दिखाना है। तो एक ड्रामेटिक स्टाइल में थोड़ा सा वो पेश किया है। और आपको उसका रिस्पॉन्स कैसे मिला? रिस्पांस अच्छा मिला। एक दो साल से वो ये यूट्यूब पे हमने ये किए थे वो, तो अच्छा मिला रिस्पांस। तो वहाँ पे भी मतलब मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो बॉम्बे में रहता है, तो वहाँ पे 5th रैंक तक था हमारा। बाद में फिर वो कुछ टेक्निकल वजह से थोड़ा थोड़ा बैक पे हो गया, नहीं तो फिल्म का अच्छा था ओपनिंग हो गई। कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि ऐसी और फिल्में बनेंगी आपके जी द्वारा, और टेक्निकल एडवांसमेंट होता जाएगा और अवार्ड्स भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लोग इस मामले के बाद, इस पानी के जो स्पेशली प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में खुल के बात करें। सब जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, और सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है। तो आपने ये जो बहुत बड़ा एक निकाला है खोल के सबके सामने कि देखो, इसमें सरपंच भी है, सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, उनके पास वो निधि है, पैसा है, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। जी तो मैं बिल्कुल। एक और वो सीन दिखाना चाहती हूँ इस फिल्म का। और जब तक अगर आप अपने कोई एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं इस फिल्म के बनाते वक्त, तो आप जरूर शेयर करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आपका अ, एक्सपीरियंस। हाँ। कुछ फ्रेंड्स वगैरह सब इकट्ठा करके, कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी है उसमें, जैसे वो हम्म। सरपंच है, वो दो फ्रेंड है। हम्म। तो ऐसे लोगों को मतलब थोड़ा कुछ नजदीक के रिलेटिव्स वगैरह सबको जमा करके वो फिल्म बनाने की पूरी कोशिश करके हमने उसको पार किया है सब काम। और वैसे तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और रिवर क्लीनलीनेस का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि रूरल एरिया में मैडम अभी इतने लोग मतलब वो पॉल्यूटेड पानी ही पीते हैं, बहुत सारे बीमारियों उनको फेस करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल। होना नहीं चाहिए, यही हमारी कोशिश है। दिल से वही कोशिश की हमने कि ये बताने का जरिया वही है कि चलो कुछ तो ये आएगा, मत फर्क आएगा इससे, बिल्कुल। इसलिए हमने ये अभी किया। मैंने आपसे जब बात की थी तो आपने बताया आपने एक कॉमिक एलिमेंट भी डालने की कोशिश की है इस फिल्म में। तो जी मैं वो दिखाती हूँ जरा लोगों को। हम पहले कॉमिक से शुरू करते हैं ताकि आगे के धक्के के लिए वो रेडी रहें। जी जी। हाँ हाँ बस तिकडं
दो लोग मछली पकड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं, आपने बताया। जी आप आते हैं। किती वाजता लागलं र? कुठं लागली अजून? पण लागेल की. लागतंय बघा. ते बाबा नदीची गटर झाली. कुठं माशा लागायचे? वो कह रहा है कि नदी अब गटर बन चुकी है। So, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जैसे कि उस दिन हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र में पुणे के आसपास ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जहां पहले 70 प्रकार की मछलियां होती थी और आज वहां पे बैरली 1 या 2 प्रकार की मछलियां बची हुई है। तो जी। बताइए इस बारे में। पहले जो अभी जो नदी जो दिखाई है यहाँ पे, रिवर जो दिखा है, वो इंद्रायणी रिवर है हमारे एरिया में, मावल एरिया में, पुणे के पास में। तो वहाँ पे पहले टाइगर फिश हुआ करती थी 1980 के पहले, बिफोर 1980। तो अभी वो नामशेष हो गई, मतलब वो अभी मछली दिखती ही नहीं, मतलब। तो ऐसे कई प्रकार के मछली जो है वो मतलब अब नदी में रहे नहीं है अभी। तो ये वो इंसिडेंट मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा बात करता है, मतलब। हाँ, और आपने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा ना ये, आपके जी जी साथ सब मछलियां खत्म हो गई। जी, वो तो अभी कैसा है कि पहले जो मतलब जो थे, पहले जो मछलियाँ थे पहले, तो मतलब अभी बहुत सारे मछलियाँ जो अभी नामशेष हुए हैं, मतलब अभी नहीं रहे नदी में। तो नदी इतना मतलब पॉल्यूटेड हो गया है कि अभी पानी इतना, मतलब सांस लेने को तकलीफ होती है उन लोगों को, तो इसलिए शायद वो अभी वो नामशेष हो गए। बिल्कुल, बहुत सारे केमिकल एफ्लुएंट्स जाते हैं फैक्ट्री से जी डायरेक्टली, और बहुत सारे लोगों में बीमारियां भी फैल रही है। बिल- कैंसर का हॉस्पिटल बहुत खुल रहे हैं आजकल गांव के आसपास। जी अलग अलग नई नई बीमारियां, स्किन कैंसर, किडनी कैंसर, जो ये सब हम चला जानू या नदीला में लोगों से सुनते हैं, तो ये सब फिल्में देख के पता चलता है कि वो रियलिटी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप जब ये फिल्म बना रहे थे तो गांव वालों की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? नहीं, गांव वाले सपोर्टिव थे। उनको बस ऐसा बताया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट हम्म, फिल्म बना रहा हूँ फेस्टिवल के लिए। हम्म, तो वो कुछ ऐसा उनका कुछ ये नहीं था, मतलब ऐसा कुछ उनका कहना नहीं था। बस वो लोग सपोर्ट करते गए। हम्म, जैसे मंदिर के सीन में बहुत सारे गाँव वाले, मेरे विलेजर्स सब पहचान वाले, मतलब जैसे फ्रेंड उसमें थे, कुछ कुछ आर्टिस्ट थे। तो ये हम्म, लोगों ने सपोर्ट किया पूरा। ये पूरा हम्म। टीम जो है हमारा पूरा सपोर्टिव था। इन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज वो फिल्म बन गई। और क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें तो ज्यादा नहीं आई क्योंकि प्री प्लान था पूरा सब। और हम्म, वैसे तो नहीं आई मुश्किलें। जी, घर वालों का सपोर्ट था। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो भी इसमें पूरे हार्टली पूरा दिल से शामिल हो गए थे, इसलिए कुछ मुश्किल नहीं आई। वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स सपोर्ट। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे वो भी मेरे फ्रेंड ही थे, मतलब वो कुछ ऐसा नहीं कि वो लोग दूर के थे ऐसे, मतलब वो भी पहले हम काम कर चुके एक साथ। बस वो पेड आर्टिस्ट थे, इसलिए फिर उनको थोड़ा पे तो करना ही पड़ा। यहाँ कैसा वो उनका टाइम निकाल कर आ रहे हैं मेरे लिए, तो दैट इज या डन। तो किसी ने कोई ऐसे आपके पास परेशानियां नहीं आई कि आप नदी के बारे में इतना ओपनली बता रहे हैं, उसके पोल्यूशन के बारे में, और एक ये जो रिलेशनशिप को आप अनकवर कर रहे हैं, तो आपको कहीं से ऊपर से वो नहीं आया चैलेंज नहीं या नहीं, रोको? अभी तक तो वैसा कुछ आया है नहीं शायद। वैसा तो नहीं अभी तक, मतलब। बस चलिए ये। जिन्होंने देखा, फिल्म फिल्म देखी है, तो वो सराहना की उन्होंने, मतलब कांग्रेस किया, अच्छा है, चलो कुछ तो बनाया तूने, अच्छा बनाया, मतलब नहीं क्या। तो वेरी ऐसा गुड, मिला कमेंट्स, गुड। अच्छे कमेंट्स मिले। Mansi, do you have any question to ask before I show the next clip? Please ask.
थैंक यू अनुजा एंड थैंक यू सादिक जी। फिल्म देखने में बहुत एक हैवी हार्ट से देखा है, टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ सवाल है मेरे। जो यूज ऑफ मीडिया, जो जिस तरह आपने यूज ऑफ आर्ट, जब हम ऐसे फिल्म्स और ऐसे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है लोगों का बिहेवियर बदलने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप ऐसे फिल्म्स बनाते हैं और दूसरे फिल्मों में भी आप काम करते हैं या सीरियल्स में? तो आपको लगता है कि समाज में परिवर्तन आता है, और किस तरह से आपने महसूस किया है, अगर कोई परिवर्तन देखा है तो कुछ एग्जांपल्स। जी, मीडिया और मूवी या सीरियल, ये जो ये लाइन जो है, ये परिवर्तन के लिए है मैडम, कि ये देखकर ही लोग प्रेरणा लेते हैं। तो ये मतलब बहुत जरूरी है कि अच्छी चीजें दिखाना चाहिए, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए है। जो अच्छी चीजें ही दिखाना चाहिए, गलत चीजें दिखा के फायदा नहीं, क्योंकि जो अच्छी चीजें वही जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो चल रहा है, वो दिखाना मतलब वो गट्स होता है। तो वो मतलब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे जो समाज में जिस तरह की जो कॉमर्शियल मेन स्ट्रीम ये है, उसमें तो काफी एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड होते हैं। फिर जैसे आप लोग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, तो जी उसका जी व्यूअरशिप मिलना एक अपने आप में चैलेंज है। जी, तो बिल्कुल। आप जैसे आपने कहा कि आपको अपनी तरफ से बनाना था, इसलिए आपने बनाया, जो कि बहुत अच्छा है। जैसा कि हम वाटर कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे हैं, क्योंकि जी हमको लगता है कि वाटर कॉन्वर्सेशंस होना जरूरी है। उसका व्यूअरशिप के हिसाब से हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है, पानी पे बात होना जरूरी है। तो जी ये जो आप जब गांव में बैठते हैं लोगों के साथ फिल्म बनाने के पहले या बाद में भी, क्या गांव वाले इस पानी के विषय में चर्चा करते हैं आपस में बैठ के, और उसको कैसे मोबिलाइज करते हैं नेताओं के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, वैसे तो कोई डेयरिंग करता नहीं है पॉलिटिशियन के बीच ऐसी बात करने के लिए। कुछ एक आध आदमी होता है कि ऐसा डेयरिंग करता है, मगर ऐसे ज्यादातर करते नहीं लोग, क्योंकि पॉलिटिशियन के आगे बात करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उनको ये बात अपनी समझाना। अभी मैंने ये तो अभी पॉलिटिशियन लोगों को टेलीकास्ट नहीं किया, बस ओवरऑल अपना यूट्यूब पे डाल दिया। तो पॉलिटिशियन लोगों ने शायद देखा या नहीं देखा पता नहीं, हमारे एरिया के लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, इसलिए तो शायद उनका अभी तक कुछ कमेंट्स आया नहीं, वरना आ जाता था। जी आई हाँ, आ होप। ही जाएगा। अगर उसका बेसिकली आउटरीच बढ़ जाएगा, कोई सुनेंगे तो आ ही जाएगा। तो उसके परिणाम तो हम समय आने पे देखेंगे। पर अगर लोगों तक ये बात पहुंचे कि इस तरह का काम हो रहा है इस जगह पे, या जी इस तरह का नदी का हाल है इस जगह पे, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शंस तो लिया जाएगा। और पूना जैसे हम अभी भी देख रहे हैं, कुछ हफ्ते पहले ही पूना के लोग तो सड़क पे आ गए हैं अपने नदी को बचाने के लिए, पर्यावरण जी को बचाने के लिए। तो या आपकी फिल्म में भी जो लोगों का चिंता दिखाया गया है कि इस नदी के लिए वो चिंतित है, वो बहुत सराहनीय है। तो अनुजा, हम थोड़ा सा फिल्म एक बार फिर से देख लें ताकि हम जरूर आगे बात करें, है जरूर। ना? सो ये वो सीन है जहाँ पर औरतें कपड़े धो रही है और दूषित होती आणि तेच पाणी आपल्याला प्यायला या लोकांना कधी कळायचं पाणी हे जीवन आहे. लोक इथं धुणी भांडी करतात. वाहत्या पाण्याला कसली आणि रोगराई आणि वयस्कर आहे म्हणून जाऊ दे म्हणते, नाहीतर चांगला इथून दाखवला असता. तेव्हा बुद्धी दे रे यांना. तो ये महिलाएं कपड़े धो रही हैं और बोल रही है कि हम लोग तो इतने सालों से यहाँ कपड़े धो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे बोलता है कि कपड़े मत धो, उससे गंदी होती है नदी। जी जी जी, बिल्कुल। ये मीटिंग नहीं सरपंच का। आलं वय सभेला हा, कुणाला काही अडचण, काही प्रश्न असतील बिनधास्त विचारायचा, अजिबात लाजायचं नाही, कुणी का असणार. नमस्कार सरपंच, नमस्कार गावातील मायबाप. मंत्रालयात माझे पत्रव्यवहार चालूच आहेत. आपल्याकडे मी बऱ्याचशा अर्ज विनंत्या केल्या, पण कुणीही मनावर घ्यायना.
अख्ख्या गावाला नदीचं दूषित पाणी प्यावं लागतं आणि त्यामुळं लहान लहान मुलं बाळ म्हातारी कोतारी सारखीच आजारी पडतात. सुधीर, तुझी कळमळ कळते आम्हाला हा? आणि तुझे प्रयत्न पण जोरात आहे. अरे पण हे सगळं अवघड आहे आणि तुझी जी मागणी आहे ती सोपी नाही हा? सोपी नाही ती. अरे पिण्याच्या पाण्यासाठी फिल्टरचा विषय आहेच की. सरपंच, नदीचं काय? आपल्या इंद्रायणी माईचं काय? आई मानतो ना आपण तिला, मग तिच्या स्वच्छतेचं काय? ते प्रयत्न चालू आहे. तुला पाहिजे ना नदीवर धुण्याची कामं बंद करू आपण. धुवायचं बंद करू. अरे पण सरते शेवटी सगळं पाणी पाणी वाहून जाणार कुठं? नदीतच ना तरीत काय. अरे मग दौडी हजामत करून काय उपयोग आहे? सो ये कह रहे हैं सरपंच को बोल रहे हैं कि नदी को साफ करना है और सरपंच उनको बोल रहा है कि हम समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन अगर लोग किधर कपड़े धोएंगे, जानवर किधर नहाएंगे, ये सब गंदा पानी जाएगा किधर अगर तुम ऐसे बोलते हो तो। जी और जी वो कह रहा है कि बीमार हो रहे हैं सब कोई। अब नेक्स्ट शॉट देखिए, वो बहुत ही मुझे बहुत ही ज्यादा वो लगा, स्ट्रॉन्ग लगा जब वो बच्चा आता है। ओके देखिए, आता तुझं उठलं का? तुम्ही सगळ्यांनी माझ्याकडं लक्ष देऊन ऐका. पाण्याचा फिल्टरचा विषय हा खरंच गंभीरपणे आपण घेतोय. पानी का असं नाही की कलर, आपण विचार करत नाही. पानी का कलर देखिए। पण थोडासा वेळ हे बघा, थांब, पाणी पिणं वेगळी आहे. बघा, असं दूषित पाणी प्यायल्यामुळं गावभर लोक आजारी पडतात. ठीक आहे ते आपल्या गावापुरतं ठीक आहे. काय म्हणता? आपल्या गावापुरतं ठीक आहे, पण नदी गरीब मैल गावागावात वाहत येते. त्याचं काय करणार आहे? आपण सुरुवात करू. आपला आदर्श, आपलं अनुकरण इतर गावं करतीलच की. अहो गावच काय, अख्खा महाराष्ट्र, अख्खा देश करेल. देशभरातल्या नद्या स्वच्छ आणि निर्मल होतील, मोकळा श्वास घेतील. सरपंच हे काय बोलताय? गावाच्या भल्यासाठी सो वो कह रहा है कि सिर्फ गांव नहीं, शहर नहीं, पूरा देश हमारा फॉलो करेगा अगर हमने ये प्रयत्न किया। जी तो जी ये पूरा जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के बाद में आप बता सकते हैं कि क्या होता है। जी फिर उनको मैं बताता हूँ कि फॉरेन कंट्री में जैसे कंपलसरी है एसटीपी एटीपी प्लांट, कि तुम्हारा वेस्ट पानी जो है हाउस होल्ड का या कोई भी, तो वो डायरेक्ट रिवर में न जाते हुए पहले एसटीपी और एटीपी प्लांट पे थोड़ा सा 50% कुछ होता है, ये मतलब रिफ्रेश होता है, उसके बाद ही वो आगे स्ट्रीम हो जाता है, मतलब रिवर में या कहीं भी जाता है। तो वैसा जो फॉरेन कंट्री में कंपलसरी है वैसा अपन इधर भी लागू कर सकते हैं। और नदी में जो वेस्ट वाटर पूरा गांव का जो जाता है, तो वो जाने से पहले अगर ईटीपी और एसटीपी प्लांट अगर गांव के नदी के पहले बनाए, मेन जो अपना गटर होती है, मतलब वो ड्रेनेज होती है, तो अगर वहां पे ये प्लांट अगर बनाते हैं तो वो नदी में पानी जाने वाला जो है डायरेक्ट पोल्यूटेड न जाते हुए 50% थोड़ा प्योर जाएगा, उस जिससे कि नदी को थोड़ा पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं हम। ये उसमें मेन जो उसका जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये बताया हुआ है इसमें। और फिर उन्होंने क्या कहा? हाँ, तो उसमें अभी सरपंच ये कहता है कि इसके लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए और मनी भी चाहिए। तो जो अनुदान जो मिलता है गवर्नमेंट से, सॉरी थोड़ा लाइट गया, मैं थोड़ा लाइट में आता। तो जो अनुदान मिलता है गवर्नमेंट से, ये जब जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, तो वो मतलब तो उसका यूज करना चाहिए। लैंड जो है, लैंड भी तो गवर्नमेंट का होता ही है, किधर कहीं ना कहीं तो होता है। और ज्यादातर ये गांव का मतलब जो एग्जांपल दिया था वो नदी के पहले जो मेन स्ट्रीम जो है गटर का ड्रेनेज लाइन जो जाता है नदी में, तो उसके पहले वहां पर गवर्नमेंट का ग्राम पंचायत का जगह है, तो वहां प्लांट फिक्स कर सकते हैं और वो थोड़ा पानी प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो सरपंच मान ही नहीं रहता,
क्योंकि वो पैसा और लैंड का वो देखेंगे, हम बाद में सोचेंगे, ऐसा पता करो, टाल देता है मीटिंग को, उधर खारिज कर देता है, मतलब मीटिंग फिनिश और निकल जाता है वहां से वो। तो ऐसा उसका वो लास्ट सीन है ओके, मीटिंग का लास्ट सीन मतलब। उसके बाद आप और बता सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर फिल्म मराठी में है ना, तो हमारे जो देखने वाले हैं, आप उन्हें हिंदी में बताएंगे तो बहुत अच्छे से वो समझ सकेंगे। जी जी जी। बाद में फिर वो उसके घर पे, मतलब अन्ना जो है, अन्ना के घर पे उसके फ्रेंड सर्कल आते हैं सब, बात चाय पीने के लिए। तो वहां पे वो बताते हैं उसको, अन्ना को, कि छोड़ दे, ये किस लिए तू उनके मतलब अपोज में जा रहा है, ये अच्छे लोग नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन है, पावर है उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो तू कार्य कर रहा है, जो समाज के कार्य जो भूल रहा है तू, तो इट्स नॉट ओके, आप छोड़ दो ये। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी मेरे पीछे है ही कौन, मेरा देखने वाला, या मैं जिसको देखो ऐसा कोई भी नहीं है। मेरा एक लड़का था, तो वो तो चला गया भगवान के पास। तो अभी ये गांव जो है वही मेरा परिवार है, और ये परिवार, मतलब ये गांव वाले और ये परिवार के लिए मुझे कुछ करना है। तो पानी अगर मैं अच्छा दे सकूं उनको, कुछ मेरे कोशिश से अगर हो सकता है, यही मेरी एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश। तो वो गवर्नमेंट के जरिए या पॉलिटिशियन के हेल्प के जरिए ही हो सकती है, किसी के अकेले का काम नहीं है वो। ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा एक सीन ऐसा है कि गांव वालों को लेकर मैं कंपनी के मालिक से मिलने जाता हूँ, क्योंकि उसका केमिकल का पानी वो डायरेक्ट नदी में छोड़ रहा है। तो उससे मीटिंग करके उसको वो बताने के लिए जा रहा होता हूँ। तो सरपंच का जो एक आदमी रहता है जो मेन, तो वो हमको बीच रास्ते में रोक देता है और कहता है कि अभी मालिक है नहीं, वो बाहर गया है, तो तुम बाद में हम मिल सकते हैं, तो अभी तुम घर जाओ। तो फिर वो बेचारे भोले होते, चले जाते हैं बाइक से। तो ऐसा वो सीन है। और एक सीन मंदिर के पास, जो सरपंच प्लान करता है कि ये आदमी जो अन्ना है, ये बार बार कुछ ना कुछ हमारे अपोज कर रहा है, पब्लिक को जमा कर रहा है, पब्लिक को होशियार कर रहा है, अवेयरनेस बता रहा है, सब ये कर रहा है। तो ये मतलब अच्छा नहीं हो रहा है हमारे लिए। आगे चल के जो हमारे जो इलेक्शन आएंगे या कुछ भी आएंगे, तो बिल्कुल हमारे ऊपर उसका थोड़ा सा कुछ ना परिणाम होगा। तो इसलिए उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं कि उसको मतलब कि ये आदमी सही नहीं, इसको कुछ ना कुछ तो करना होगा इसका। और वो मीटिंग लेते और बोलते हैं कि उसका काम तमाम करो। सरपंच उनको बोलता है, फिर किसकी राह देख रहे हो तुम, अभी तक क्यों नहीं किया काम। तो ऐसे मतलब वो थोड़ा सा डिस्कस होता है उनका वहां पे। और एंड में फिर वो अन्ना सचमुच का मतलब उसको बताया नहीं कि किसने मारा, मगर वो नदी में मरा हुआ तैर रहा था। और बैकग्राउंड में वो वाइफ जो है, तो वो वहां पर वो बोलता है कि जो उसके जो फ्रेंड रहते वो भी बताते कि जिस नदी के लिए, जिस पानी के लिए अन्ना कोशिश कर रहा था, आज उसी पानी में वो लेटा हुआ है। और वहां पर एंड बताया ऐसा। तो ये मेन थीम था स्टोरी का। जी, मेरा एक सवाल है सादिक जी यहाँ पे। ये जी जो हमारा परसेप्शन रहता है जनरली आम जनता में कि जी ये सोशल वर्क मत करो और पॉलिटिशियंस के साथ मतलब एंटेंगल मत होइए, एनकाउंटर में मत करिए ऐसे सब सोशल इश्यूज में, क्योंकि आपकी लाइफ रिस्क में आएगी। ये हमारे समाज में ये ऐसा जनरल परसेप्शन एक समाज में डिस्ट्रस्ट की भावना लाता है एक दूसरे के लिए। क्या आपको अपने जीवन में जब आप ऐसे काम भी करते हैं, फिल्म तो एक छोटा सा उसमें हिस्सा है आपके जीवन का, आपको महसूस होता है कि समाज में एक्चुअली हम अपने पॉलिटिशियंस और सिस्टम से काफी डरते हैं और काफी समय अच्छा काम करना चाह के भी हम नहीं कर पाते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में? जी जी जी। क्या है कि सभी लोग, अभी आप जैसे देखिए, अपनी पहले कहावत है कि 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती है, कुछ उंगलियां खराब होती है, कुछ अच्छी होती है। तो अच्छे पॉलिटिशियन भी है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन जो अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर कुछ बुरे पॉलिटिशियन है वो उनको रोक देते हैं, अच्छे कामों के लिए रोक देते हैं सब, मतलब हर जगह उनको रोक लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जो काम कर रहे हैं वो सोशल वर्क कर रहे हैं, और वो होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये रुक जाना चाहिए, और जो अपना जो विकास का जो काम है, जो हो रहा है काम अच्छा, तो वो होना चाहिए। मतलब पॉलिटिशियन तो हर जगह अच्छे बुरे होते ही हो। और मेरा जो एक और सवाल है वो इसमें है कि आपका जो एक्सपीरियंस है गांव में रहने का, और अपने आपके दोस्त भी हैं जिन्होंने फिल्म में भी काम किया है,
आपको क्या लगता है कि हम सिटीजन्स आपस में साथ में आके ऐसे सब सोशल वर्क करने में हमारी बाधा क्या है कि हम खुद करने आगे बढ़े और तभी हम अपने आप पॉलिटिशियंस और सिस्टम या गवर्नमेंट को हम पुश कर सकते हैं कि वो करे? सिटीजन्स को आपस में क्या बाधा है सोशल वर्क करने में, एनवायरमेंट वर्क करने में? आपका क्या एक्सपीरियंस है? कैसा है, सब काम जो है, ये जितने भी अच्छे काम है, ये सब मिलजुल के करना बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिटिक्स भी अगर वो चाहे तो सब कर सकते हैं, और आम जो पब्लिक है तो वो भी इनको फोर्स करके ये अच्छा काम करना बहुत जरूरी है, ऐसा समझाकर उनको करना बहुत जरूरी, काम होना बहुत जरूरी है। पर मतलब मिलजुल एकत्रित के हम करना क्यों नहीं जरूरी हो है। पाते? सॉरी, जी जी। एकत्रित हम क्यों नहीं हो पाते? आपको क्या लगता है समाज में ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जिसके कारण सिटीजन्स एकत्रित नहीं हो पाते कुछ अच्छा काम करने के लिए? बहुत समय लगता है और कभी एकत्रित होते भी है तो वो मोमेंटम थोड़े समय तक रहता है और फिर वो रह नहीं पाता है कि कंटिन्यूअस एक काम करते रहे मिलके। तो आपको क्या एक्सपीरियंस है कि हम क्यों नहीं कर पाते समाज में एक साथ आके सामने? कैसा है कि हर एक की सोच, हर एक के विचार जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए फिर वो जिसमें हम कहते हैं ना अहमपना, कि अभी ज्यादातर जो पॉलिटिशियन जो रहते हैं कि वो अहमपना में ज्यादातर मशगूल होते हैं, और आम पब्लिक का उसमें फिर क्या होता है कि थोड़े ये हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है, और उनके जो विकास के काम जो होते हैं, मतलब सोशल वर्क जो होता है, वो भी निगलेक्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। तो वो होना जरूर, मतलब होना नहीं चाहिए, और वैसा ही होता है। जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे पॉलिटिशियन, आम पब्लिक सब, तो वो मेरे ख्याल से सचमुच हो जाएगा सब। और जो अपना इशू है मेन, रिवर पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, तो वो भी इम्पैक्ट अच्छा होगा फिर, अगर सब लोग एक साथ आएंगे, एक साथ काम करेंगे। तो ये मैसेज अच्छा है, तो बहुत जरूरी है एक साथ आना, सबके एक साथ, उनके जो विचार है, उनके जो थिंकिंग है, वो भी एक साथ होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत जरूरी है आजकल, कि मानवता के उद्धार के लिए एक साथ आना, सभी, फिर पॉलिटिशियन हो, आम पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, सब ने एक साथ मिलकर एक ये काम करना बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। जी। तो इसको मटेरियलाइज कैसे करें सादिक जी? क्योंकि हम सब ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आज के एक ज्यादा से ज्यादा वर्ग के लोग एजुकेटेड हैं, आप कुछ करना भी चाहते हैं, पर किसी जी। कारणवश से हम साथ आके कोई अपनी नदियों के हाल जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जो बदलाव लाना है वो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर हम नदी को साफ करने ना जाके हम घर घर का अवेयरनेस कर सके, तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबिलिटी है? अगर आपके विलेज का ही एग्जांपल ले तो जी। जस्ट छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर हम केमिकल युक्त सोप, सर्फ, साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक्चुअली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो कंट्रोल किया जा सकता है, डोमेस्टिक पोल्यूशन ही ज्यादा रिवर्स को पोल्यूट करती है। तो आपको लगता है कि जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मान लीजिए आपके विलेज में हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि आप प्लास्टिक का यूज ना करें, आप फलाना साबुन या फलाना सर्फ या फलाना टॉयलेट क्लीनर का यूज ना करें, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपके एक गांव में हम सैंपल के लिए, पायलट के लिए करें? तो क्या पॉसिबल है कि गांव के लोग ये बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे? जस्ट एग्जाम्पल के लिए बात करें, आपका फिल्म दिखाएं और बोलें कि ये हमको नहीं करना चाहिए, गांव वाले हम सब मिलके प्लेज लेते हैं, प्रण करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ काम हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब उनको सवाल अपनी, ये उठता है कि करेगा कौन जाके गांव में, ये हाँ, वाला जी सवाल जी है। जी, उतना टाइम आपके लोगों के पास है नहीं। अभी जितने भी विलेजर्स है, बड़े मुश्किल से इकट्ठा करते हैं लोग, नहीं क्या। मैंने भी फिल्म के लिए जब विलेजर्स को इकट्ठा किया, तो थोड़ी सी मुश्किल आई, मतलब उनको पहले ही बताना पड़ा एडवांस में कि 2 दिन के बाद अपनी मूवी शूट होने वाली है, तो आप थोड़ा टाइम निकालो। तो फिर वो मान गए कि जैसे जी चलो, आपका जी उनको क्यूरियोसिटी जैसे था ये, कि मूवी का शूट बिल्कुल, कैसा होता है, हाँ वो हाँ, देखने की। ये जी। बिल्कुल जी, ये आपका ये 15 मिनट्स का जो फिल्म है उसकी शूटिंग के लिए आपको कितने टेक्स, रीटेक्स और कितना एक्चुअल फिल्म आपने रिकॉर्ड किया और उसमें से एडिटिंग किया? वो मैडम एक्चुअली 3 डेज लगे हमको, मतलब शूट के लिए, प्रॉपर शूट के लिए जो है, फिजिकल शूट के लिए, तो उसको 3 डेज लगे। और 2 डेज में हमने बाकी का जो पोस्ट प्रोडक्शन है, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, ये बाकी का सब वो एडिटिंग वीडिटिंग सब वो 2 डेज के अंदर कंप्लीट किया। 5-6 दिन में हमने
5 to 6 डे आई थिंक, तो हमने वो कंप्लीट कर दी इसको मतलब। तो आप 15 मिनट्स की फिल्म बनाने के लिए कितने आवर्स का रिकॉर्डिंग हमको जरूरत होता है? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आपने तो ज्यादा तो टाइम नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर मेरे जो टीम में जो है सब मतलब एम्प्लॉय लोग हैं ज्यादातर, मतलब कहाँ कहीं जॉब करने वाले या कोई बिजनेस करने वाले छोटे मोटे ऐसे थे। तो विलेजर्स तो ठीक है, उनका टाइम निकल कर आ गए वो, मतलब जो मेन जो इसमें जो मेन स्ट्रीम में जो आर्टिस्ट थे, तो वो लोग का टाइम मिलना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए थोड़ा फिर वो उनको टाइम निकाल कर उनका मतलब हर एक का शेड्यूल, मतलब जैसा अभी ज्यादातर मेरे ख्याल से कुछ 6 घंटे या 7 घंटे हमने शूट किया है, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 5-6 घंटे का शूट था पर डे, मतलब जैसे 3 पर डेज। डे? जी, वो प्री प्लान था, पूरा पेपर वर्क क्लियर था, तो इसलिए फिर ज्यादा मुश्किलें नहीं आई, मतलब अगर प्री प्लान नहीं होगा, पेपर वर्क नहीं होगा आपका, तो फिर वो मतलब टाइम इट्स टेक मोर टाइम, ऐसा मेरा श्योर मानना है। श्योर। जी अनुजा। जो आपके गांव में इस चीज की अवेयरनेस करने के लिए कि आप केमिकल युक्त क्लीनिंग सप्लाई मत यूज करिए, अब तो नेचुरल और बायो एंजाइम के प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, जिससे नदी को भी परेशानी नहीं होगी, तो वो करती हूँ, तो हम लोग वैसा एक प्लान कर सकते हैं और गांव में जाकर वो अवेयरनेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश करने में हर्ज क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनेटली। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, वैसा है। तो सो हम अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हैं, वो लोग पूछ सकते हैं सवाल, आप लोग फील फ्री टू आस्क। नहीं, अभी तो सब बिजी है मैडम, मैंने कोशिश की थी कि दो आर्टिस्ट जो है सरपंच और वो पुलिस, ये दोनों से बात की थी, तो हाँ जी। सरपंच शायद आउट ऑफ है थोड़ा, और वो बिजी था मीटिंग में, और पुलिस भी बोला आने वाला था, मगर वो मेरे ख्याल से ट्रैफिक में अटक गया शायद, तो वो मेरे कोई बात साथ ही नहीं। होता था अभी शायद। हमारे पास संजीव हैं जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी जी। संजीव, प्लीज गो अहेड। शायद थोड़ा हिंदी इंग्लिश बोल दूंगा। कोई हाँ, बात नहीं, हम तो ट्रांसलेट। मतलब ये एक्चुअली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, जीवित नदी की एक ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में, उसके वॉलंटियर्स है, और आप जो भी बोल रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं एक्चुअली पुणे सिटी में। और आपको भी अभी पता रहेगा कि पुणे सिटी का नदी का हाल बहुत ही मतलब इतना गंदा है, और उसके लिए काफी कुछ करना है, लेकिन जो कर रहे हैं वो सही तरह से नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट। तो हम लोग लोगों को बोल रहे हैं कि साफ करने के लिए आप जो भी बोले एसटीपी करना है, और ये बायो एंजाइम्स और ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना है, उसके लिए हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं और लोगों को नदी के पास लेते हैं, मतलब स्कूल हो या कंपनीज हो या जनरल पब्लिक हो, उनको नदी के पास लेके उनको नदी के बारे में बताते हैं, मतलब इतिहास भी बताते हैं, और उसको क्यों वो गंदा हो रहा है वो सब कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये लंबी रास्ता लग रहा है, छोटा काम है लेकिन इतना टाइम लग रहा है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने में। तो मेरा ये विनती है कि हम लोग मतलब आपके साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये काम जो है वो एक संस्था या एक आदमी या कोई भी अकेला नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इस छोटे सिटी में भी स्टेट का तो दूर की बात, इवन एक सिटी में, लेकिन आप महाराष्ट्र की भी बात करेंगे तो सब संस्थाओं को मिलके ये काम करना पड़ेगा। और आपका जो मूवी है हम लोग को जरूर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखने की इंतजार है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मतलब कैसे आपके साथ कांटेक्ट करके ये जो है बड़ा कर सकते हैं पूरा, आई थिंक। जी जी। जो इनके मूवी का लिंक है, मैं वो हमारे मूठा वाले ग्रुप में हम लोग उस दिन मिले थे आरएफडी के उसमें, अगर आपको याद होगा। मैं तो काफी बिजी था, मीन्स तो इतने लोगों से मिला तो yes, so we met there, so we will Okay. put this link, and in fact हम अभी जो ये चल रहा है इस वक्त पुणे में, वो तो बहुत ज्यादा एक तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, वैसा ही सीन कुछ चल रहा है। तो हम कुछ ऐसे जगह जहां पर उनके पास प्रोजेक्टर और फिल्म को दिखाने की सुविधा है, हम उनसे बोलेंगे कि वो लोग ये फिल्म दिखाएं, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएंगे कि देखो ये ऐसा भी होता है, अगर आपने आवाज उठाई तो सब उनको पता रहना चाहिए।
So we are correct, correct. definitely हम लोग करेंगे, मैं आपको सादिक जी के साथ कनेक्ट भी कर दूंगी और हम लोग Please, इसको please. आगे डेफिनेटली लेकर जाएंगे, बिकॉज अभी इस फिल्म में सबटाइटल्स नहीं है, तो ये सिर्फ मराठी में है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो जो हो रहा है वो हम इंट्यूटिवली भी समझ जाते हैं, क्योंकि वो सब जगह हो रहा है, हर भाषा हर स्टेट में हो रहा है. बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर आस्किंग. तो आप कौन से गांव में रहते हैं शायद? आई मीन आप शायद मुझे वो ये पता नहीं। सर ये हमारा पूना जो है, पूना सिटी, वहाँ से 40 किलोमीटर, नियर बाय 40 किलोमीटर टूवर्ड्स मुंबई, वडगांव मावल बोल के इसकी। ओके, वडगांव मावल. ओके, जी जी। आप बोल रहे थे पावना नदी शायद बोल रहे थे. पवना नदी हमारे राइट में पड़ता है मतलब, और हमारे जो गांव में जो रिवर है वो इंद्रायणी नहर। इंद्रायणी रिवर. हाँ, जी जी। तो वो नदी का भी हाल वैसा ही है, मतलब उसमें भी बहुत पोल्यूशन और कंटामिनेशन हुआ है. जी जी। हाँ, तो साथ में काम करना पड़ेगा शायद. आई मीन वो Definitely. बिल्कुल. हाँ, यस, थैंक यू. Definitely. Thank you for Thank you. sharing your thoughts. मानसी, आप पूरे इंडिया में, पूरे इवन इंडिया के बाहर बांग्लादेश में और हर जगह आप घूम के नदी के बारे में, पानी के बारे में सबके साथ बात कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं. आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि नेशनल और इंटरनेशनल सीन क्या है, लोगों का कहना क्या है, लोगों के करने और कथनी में वो फर्क है, वो क्या है. आप क्या बोलना चाहेंगी? थैंक्स अनुजा एंड थैंक यू सादिक जी. आई जी। थिंक ये सारी बातें आके रुकती हैं हम पे, सिटीजन्स पे, कम्युनिटी पे. और जैसा कि सादिक जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम सब अपने पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमारा कलेक्टिव लिविंग पे हमारा फोकस है ही नहीं. इस सिचुएशन में जब चंद ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जीवित नदी है ना, जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका जो प्रयास रहता है वो काफी कमजोर हो जाता है अगर जनता उसमें जुड़ती नहीं है. पर मैं ये कहूंगी कि हमें फिर भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए. कहीं ना कहीं लोगों को एहसास तो होगा. और आफ्टर ऑल फ्यूचर जनरेशन में जो मुझे होपफुल लगता है वो ये है कि काफी फ्यूचर जनरेशन के लोग इस बात पे जुड़ रहे हैं और वो महसूस भी कर रहे हैं कि नहीं, खाली डेवलपमेंट और खाली इकोनॉमी से नहीं, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. शायद क्योंकि उनकी स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन में एनवायरनमेंट काफी रहा है. जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, मैं, सादिक जी, अनुजा, आप, संजीव, हम लोग को स्कूल टाइम में इतना एनवायरनमेंट पढ़ाया नहीं गया है, तो शायद इसलिए हम अपने आप को मोबिलाइज करने में एज अ सिटीजन हम उतने एक्टिव नहीं है. उसमें से चंद लोग ही हम लोग आगे आ पा रहे हैं. पर मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जितना मैं दुनिया में देख रही हूँ, देश में भी, कि यंगर जनरेशन को मोबिलाइज करना अब काफी पॉसिबल है और वो करना भी चाहते हैं कुछ अच्छा समाज के लिए काम, और चिल्ड्रन भी फॉर दैट मैटर, यूथ के अलावा. तो कहीं ना कहीं जो हम लोग चंद लोग हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं, कुछ बदलाव लाने की, कुछ नदियों को साफ करने की. अभी मैं गंगा पे हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन पे जैसे काम कर रहे हैं सी गैप के थ्रू. तो हम लोग को मेरे ख्याल से हमको यूथ और चिल्ड्रन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि बड़ों में चेंज लाने के लिए भी एंट्री पॉइंट वो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि दो बड़े मिलके डिसाइड करें और उनको हम बड़ों को कैसे समझाएं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. we have too thick skin to now change ourselves, I will say it simply. but I think जो सॉफ्ट मोल्ड है चिल्ड्रन और यूथ, हम उनके साथ ये बात कन्वे कर सकते हैं और उनके थ्रू हम समाज में बदलाव ला सकते हैं. अब ये बदलाव जो है वो हर घर से आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट जो है रिवर पोल्यूशन में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा परसेप्शन जो है, हम सोचते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. तो ये जो मैंने फिल्म में भी ये रियलाइज किया कि डोमेस्टिक वेस्ट का जो एंगल था वो सामने नहीं आया. फिल्म में जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैप्चर किया गया है. तो हमको ये भी बात घर घर पहुंचाना पड़ेगा. जब हम चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं, तो हम हर घर में बदलाव कैसे लाएं. यही पानी जो हमारे घर से गंदे सर्फ और गंदे एसिड से निकलता है, वही पानी अगर बायो एंजाइम से निकल के जाता है, तो नदियां इस पानी को वेलकम करेंगी.
तो ये जो बदलाव है ये तो हर घर में लाना है, तो हर घर में लाने के दो ही तरीके हैं कि हम हर घर जाएं। तो कुछ संस्थाएं ही रहती है पुणे में, मतलब फिंगर टिप्स पे है संस्थाएं, अहमदाबाद में फिंगर टिप्स पे है, और या तो हम स्कूल में जाएं और हर बच्चों को दिखाएं, और हमको उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो स्कूल्स में अगर हम इंट्रोड्यूस कर सके, कॉलेज में अगर हम ऐसे मटेरियल्स का इंट्रोड्यूस कर सके जो कि वो लोग वेस्ट वाटर जनरेट ना करें, तो आई थिंक उनको कन्विंस भी होगा। खाली जाके बोलने से सफिशिएंट नहीं है, अब प्रैक्टिकली अप्लाइड दिखाना पड़ेगा उनको। तो जी, मेरा तो यही मानना रहेगा। ओवर टू यू अनुजा, एंड वी कैन आल्सो कॉल इट ऑफ। ओके, यस, आई अग्री विथ यू कि हमें अब बोलने का टाइम नहीं रह गया है, अब हमें करने का और दिखाने का और लोगों को आर्मी खड़ी करने का टाइम आ गया है। तो उन्हें ट्रेनिंग करना है कि देखो, जब हम अगर किसी बच्चे के हाथ से अगर वो पेन के साथ खेल रहा है और हम सोचते हैं कि पेन से उसकी आंख में लग जाएगा, तो हम पेन अगर उसके हाथ से लेते हैं तो उसके बदले में दूसरा हमें कुछ देना पड़ता है ताकि वो रोने ना लग जाए। तो वो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए अगर हम बोलते हैं कि आप केमिकल के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मत यूज करिए, तो उसके बदले में क्या यूज करिए, क्योंकि कोई अपना घर या दुकान या ऑफिस बिना क्लीन किए तो नहीं रहेगा ना। तो ये लीजिए, उसके बदले में आप बायो एंजाइम यूज करिए। ऐसे आप बायो एंजाइम खुद बना सकते हैं, ऐसे बायो एंजाइम बाजार में मिल रहे हैं। मतलब यू हैव टू गिव देम द एंटायर A to Z स्टोरी। सो वो सब करने के लिए अब हम तैयार हैं, मतलब विद ऑल ऑफ यू, विद ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो आई एम वेरी होपफुल, लाइक मानसी सेड, कि हम ये कर सकेंगे। और हमारा यूथ जो है वो बहुत करने के लिए तत्पर है। सो थैंक यू वेरी मच। वी हैव आर आपकी फिल्म देखकर हमने यही सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बात करने से और बात को आगे लाने से, लोगों को अवेयर करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। निडर होकर ही हमें करना है, और एक करेगा तो और भी लोग उसके साथ जुड़ते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सादिक फॉर दैट, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट हमारा होगा फ्राइडे वाटर्स का सेशन अगले महीने के फर्स्ट फ्राइडे को, और उसके पहले हमारा हर फ्राइडे को फ्राइडे थीसिस होता है, फ्राइडे आर्ट होता है, जिसमें हम अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, और वो लोग वाटर से रिलेटेड जो उन्होंने करा है वो उसके बारे में बात करते हैं। सो मानसी, Okay, इस वक्त मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगले फ्राइडे मैं क्योंकि हमारे दे कुछ शेड्यूल्स चेंज हो रहे थे। या थैंक यू अनुजा, एंड थैंक यू सादिक शेख जी आपके फिल्म के लिए। मैं तो चाहती थी कि ये फिल्म में लास्ट में अन्ना का जो सीन है वो ना आता, और ताकि सब एक्टिविस्ट जो सब कुछ बदलाव लाना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव नोट में आते। ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है आपकी फिल्म से, क्योंकि हम जो समाज एक डरा हुआ है उसमें बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये मैसेज कन्वे करें कि चेंज पॉसिबल है, एक इंसान से चेंज पॉसिबल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी अगली फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट होंगे, जो एक्टिविस्ट होंगे, वो बदलाव करके ही दिखाएंगे, ना कि है ना, ताकि हम लोग और एक एक्टिविस्ट से 10 एक्टिविस्ट और 10 चेंज मेकर्स को हम मोटिवेट कर सकें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, और मेरे ख्याल से आप ये बात समझ रहे हैं बहुत गहरे तरीके से कि फिल्म का मैसेज बहुत डीप जाता है। जैसे हमने शुरू में बात शुरू किया था कि वाटर आर्ट्स जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है समाज में बदलाव लाने के लिए। तो जो हमारे फ्राइडे वाटर्स के सेशंस होते हैं उसमें वाटर टॉकीज जो है वो फिल्म के बारे में बताता है। सिमिलरली आर्ट्स भी एक फिल्म का हिस्सा है, और फिल्म भी आर्ट्स का हिस्सा है। सिमिलरली हम वाटर ऑथर्स को भी बुलाते हैं जो वाटर के बारे में लिखते हैं, और रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाते हैं जिसमें हम थीसिस क्लब बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है वो वेडनेसडेज फॉर वाटर है। अगले वेडनेसडेज फॉर वाटर हमारा 10 मई को है। आप प्लीज उसमें ज्वाइन करिए, जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी सीरीज आजकल चला रहे हैं, और हम रिवरस्केप सीरीज चला रहे हैं वेडनेसडेज को, और हम लेक एंड पॉन्ड सीरीज चला रहे हैं वेडनेसडेज को। इसके अलावा हम मंडे को भी मिलते हैं और कॉन्वर्सेशन करते हैं। जैसा कि हमारे शुरू में बात हुई कि वाटर कॉन्वर्सेशंस आर क्रूशियल फॉर वाटर कंजर्वेशन।
तो मंडे को जो हम बात करते हैं वो हमारा टोटली डेडिकेटेड है टू वुमेन फॉर वाटर। हम उसको कहते हैं मंडे मंचिंग विद वुमेन फॉर वाटर, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं का वाटर सेक्टर में आना बहुत जरूरी है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे सारे दिन हमारे 5 PM फिक्स्ड है, 5 to 6 PM। तो प्लीज ट्यून इन एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर वेबसाइट, जहाँ के सारे लेटेस्ट जो इवेंट्स होते हैं उसके अपडेट्स रहते हैं। लाइव इवेंट्स भी हम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं हमारे लोग, और हम बेसिकली फिर वहां से हम जो इंफॉर्मेशन है वो इस कॉन्वर्सेशन में हम लेके आते हैं। तो प्लीज हमारे वेबसाइट में देखिए अगला इवेंट कौन से हैं, www.w4w.in। और आप सभी को शुभकामनाएं, और इस फिल्म के लिए सादिक शेख जी को स्पेशल शुभकामनाएं, और अगले फिल्म का हम इंतजार करेंगे। एंड थैंक यू अनुजा फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस सेशन एंड गेटिंग सादिक जी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Please take care and we see you soon next Monday, Wednesday and Friday to come. Thank you.